Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's study साथ साथ. So today I am going to talk about a new vacancy. Actually it is a combined vacancy of KBS and NBS. इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं. क्या सिलेबस पैटर्न रहेगा, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है और ये वैकेंसीज़ कितनी है. ऑलमोस्ट 14,000 वैकेंसी निकाली गई हैं जिसमें नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों टाइप की वैकेंसीज़ हैं. पीआरटी वैकेंसी है, टीजीटी है, पीजीटी है, प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर. ठीक. नाउ यू कैन सी द नंबर ऑफ वैकेंसीज. असिस्टेंट कमिश्नर इन केवीएस एंड एनवीएस, प्रिंसिपल, vice principal KVS and PGTs in KVS. You can see the number of vacancies. Now PGTs in NVS and later on PGTs in modern Indian language in NVS. Assamese, Garo, Tamil, Telugu, Urdu, Bangla, Manipuri. ठीक है. Later on TGTs in KBS. Hindi, English, Sanskrit, social studies, mathematics, science, physical and health education, art education, work experience, special educator इन TGT. ये पहली बार इंक्लूड की गई है स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी. ओके, यू कैन सी द नंबर ऑफ वैकेंसीज. ओवरऑल जो नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स आर 493. ओके, लेट्स मूव अहेड. लाइब्रेरियन इन KBS, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इन NBS and trained graduate teacher in third language NBS. So after this, let's talk about essential and desirable qualification and pay scale. So first of all, we will talk about the essential qualification for PGTs. These are the essential qualifications for PGT. Integrated postgraduate course from NCT recognized institution, university in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate including B.Ed component. या फिर you can see master degree from a recognized institution, university with at least 50% mark in aggregate in concerned subject. B.Ed degree from NCT recognized institution, university at least 50% marks, and 3 years integrated B.Ed M.Ed from NCT recognized institution, university with at least 50% marks. या फिर 4 years integrated degree with at least 50% marks from NCT recognized institution, university include B.Ed component, proficiency to teach in Hindi and English medium. तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. आपका पीजी उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए प्लस बीएड. राइट. नाउ नेक्स्ट, यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन करके दिया है पीजीटी इंग्लिश इन केबीएस. तो इंग्लिश प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल. तो यहाँ पर एनबीएस और केबीएस में जो डिफरेंस दिया गया है, अगर आप KVS के लिए ही अप्लाई कर रहे हो स्पेशली, तो KVS में एक रिकमेंडेशन और है कि सपोज़ आप PGT इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो TGT में ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपको तीनों ईयर्स में आपने इंग्लिश को पढ़ा हो. जबकि अगर हम NVS की बात करते हैं उसमें सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश कहा गया है. PGT इंग्लिश, NVS इंग्लिश. ठीक है, यानी सिर्फ पीजी अगर आपका इंग्लिश में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर पीजीटी केबीएस की बात करें तो उसमें ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपने इंग्लिश को पढ़ा हो. पीजीटी हिंदी इन केबीएस, तो हिंदी के लिए भी सिमिलर कंडीशन है. हिंदी प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल आल्सो. एंड पीजीटी हिंदी इन एनवीएस हिंदी. पीजीटी फिजिक्स के लिए रिक्वायरमेंट, ये डिफरेंट सब्जेक्ट की अपनी अपनी कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको देख लेनी है. Now, for postgraduate teacher, computer science, physical education, and modern Indian language. These are the essential qualification for these kind of vacancies. Now, TGT. तो TGT के लिए 2 सेपरेट कॉलम्स बनाए गए हैं, for KBS and for NBS.
For KBS 4-year integrated degree course from NCT recognized institution university with at least 50% mark in concerned subject well as in aggregate including B.Ed component. ऑलराइट, KBS के लिए क्या है, ग्रेजुएशन लेवल पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स प्लस B.Ed एंड NVS 4 years integrated degree course from NCT recognized institution university with at least 50% marks in the concerned subject well as in aggregate including B.Ed component. तो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है. देन और करके एक और ऑप्शन दिया है, यहाँ क्या है, बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी with at least 50% marks in consent subject, combination of subject as well as in aggregate. B.Ed degree from NCT recognized institution university with at least 50% marks, 3 years integrated B.Ed M.Ed from NCT recognized university with at least 50% marks. कुल मिलाकर TGT लेवल पर आपका मतलब ग्रेजुएशन प्लस B.Ed और सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए. नाउ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या दी हैं, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्कूल फॉर KBS एंड इन अ रेजिडेंशियल स्कूल फॉर NVS, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेजेस. These are the essential qualifications. Now, after essential qualification, let's talk about age relaxation. The candidate should have attained maximum 18 years of age. Maximum relaxation in upper age limit will be as under. तो कहा गया है मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है किसी भी पोस्ट के लिए आप समझ सकते हो 18, स्पेशली अगर हम PGT की बात करें तो 18 से 40 इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए. मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 और इसमें जो रिलैक्सेशंस हैं कास्ट वाइज या फिर जेंडर वाइज वो यहाँ गिवन है. जैसे कि SC और ST के लिए 5 years का रिलैक्सेशन है. सपोज दैट यू आर अप्लाइंग फॉर PGT पोस्ट and your age, guess 40, your age is 40, then and you belong to the category of SC and ST, then you will get 5 year जो age relaxation, right, 5 year age relaxation. अदर OBC के लिए भी 3 year age relaxation है. यहाँ पर एक बेनिफिट वुमेन के लिए है, वो क्या है कि उन्हें 10 year का रिलैक्सेशन है. वो कोई भी पोस्ट अप्लाई करती हैं उन्हें 10 year का रिलैक्सेशन है. PGT, TGT, लाइब्रेरियन, PRT, ठीक है. PGT के लिए जो एसेंशियल एज क्राइटेरिया है वो 18 to 40 है. TGT के लिए 18 to 35 है एंड PRT के लिए 18 to 30 है. और 4 दिसंबर से पहले की ये होनी चाहिए. नाउ कैंडिडेट विद 3 years कॉन्टीन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट. यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरियाज दिए हुए हैं. रेगुलर KBS एम्प्लॉय फॉर पोस्ट इन KBS तो उन्हें 5 year जनरल के लिए, 8 years OBC के लिए, 10 years SC ST के लिए एज रिलैक्सेशंस हैं. नाउ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो SC ST 15 years, OBC 13 years एंड जनरल 10 years. एंड फीमेल के लिए हम देख चुके हैं 10 years एज रिलैक्सेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोड ऑफ सेलेक्शन. मोड ऑफ सेलेक्शन जैसा कि आप जानते ही हैं इसमें 2 tiers में एग्ज़ाम होने वाला है, Tier 1, Tier 2 एंड देन इंटरव्यू. हर एक पोस्ट के लिए यही प्रोसीजर रहने वाला है. पहले आपको एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्लियर करना होगा. सपोज एक प्री एग्ज़ाम होगा, देन मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा. ठीक है, इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है. जैसे तो सबसे पहले हम बात करेंगे Tier 1 में क्या सिलेबस रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे. तो यहाँ बात कर रहे हैं हम Tier 1 की. Tier 1 विल बी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इन OMR मोड, द टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ इन NVS. ठीक है, MTS के लिए अलग प्रोसीजर है, बाकी सबके लिए सेम है जो प्री वाला क्वेश्चन पेपर पैटर्न है. तो इसमें
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, वॉट एवर यू कैन चूज। तो यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं, रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स में आएंगे। देन न्यूमेरिक एबिलिटी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जनरल नॉलेज भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक, ऐसे ही जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसके लिए भी 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो ओवरऑल आपका ये क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो 300 का रहेगा, 300 मार्क्स में, और ओवरऑल 100 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 1/3 की, ठीक है। और इसमें ये जो पेपर पैटर्न है ये एक क्वालिफाइंग बेस्ड होगा, ठीक है, इससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी, ये एक क्वालिफाइंग पेपर होने वाला है, प्री वाला। जैसे MTS के लिए क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो रहेगा उसका थोड़ा सा प्रोसीजर सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। तो ओवरऑल इसमें किस तरीके से देखो, 20 मार्क्स में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स हैं, देन 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, देन बाकी 40 क्वेश्चंस हैं लैंग्वेज के। इस तरीके से इनका डिवीज़न किया गया है। नाउ अगर हम बात करें Tier 2 एग्ज़ाम की, तो Tier 2 में क्या होगा, Tier 1 क्वालिफाइंग होने वाला है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। Tier 2 सपोज वहाँ पर 1000 वैकेंसी हैं तो 10,000 कैंडिडेट को लिया जाएगा Tier 1 में। उसके बाद में वहाँ रेशो जो है वो 1:10 का रेशो है, हम मतलब एक वैकेंसी के लिए 10 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा जो प्री टेस्ट है। उसके बाद जो Tier 2 आता है हमारा, Tier 2 में सपोज़ एक सीट है तो उसके लिए 3 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब 1000 पोस्ट के लिए 3000 कैंडिडेट को Tier 2 में सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर 1/3 का रेशो है। अभी बात करते हैं डिटेल सिलेबस ऑन KVS एंड NVS वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट। इसका जो डिटेल सिलेबस है वो वेबसाइट पर है, वो भी मैं आपको शो करूँगी। देन अभी हम बात करते हैं ओवरऑल क्या रहने वाला है, क्या ब्लूप्रिंट है इसका, क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव 60 एंड डिस्क्रिप्टिव 10। ओवरऑल 70 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे एंड 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे एंड 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। मार्किंग स्कीम क्या है इसकी, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 1 क्वेश्चन 1 मार्क, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 60 है एंड डिस्क्रिप्टिव 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, ठीक है। 40 मार्क्स में डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होने वाला है। अब यहाँ क्या कहा गया, इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन Tier 2 ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अब यहाँ पर क्या है, 1/4 की मार्किंग दी गई है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। जो आपका Tier 1 है उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। फॉर ईच रॉन्ग आंसर अनआंसर्ड क्वेश्चंस विल बी गिवन एनी मार्क, will not be given any mark. There is only one correct response for each questions. Filling up, darkening more than one response in any questions will be treated as wrong response, जैसा कि आप हर एग्जाम में देखते ही हो, ठीक है। नाउ Tier 1 और Tier 2 क्वालिफाई करने के बाद आपका एक इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू का वेटेज कितना रहने वाला है, तो Tier 2 का जो आपका स्कोर होगा उसका वेटेज लिया जाएगा 85% एंड 15% आपका वेटेज रहेगा इंटरव्यू का, ठीक है। और 15% हालांकि 100 मार्क्स में है, ठीक है, इंटरव्यू, और 85% वेटेज आपका Tier 2 का जो स्कोर होगा उसका लिया जाएगा। इस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगी। ऑलराइट, नाउ how to apply this form, तो the candidate should apply only through the official website of CBSE, KVS और NVS। यहाँ पर तीनों के लिंक गिवन है, ठीक है। और इसका फीस क्या है, हम फीस भी देख लेते हैं। जैसे कि हर एक पोस्ट वाइज फीस दी हुई है, एग्जामिनेशन फीस प्लस प्रोसेसिंग फीस। यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ पोस्ट पर दोनों संगठन में, दोनों
एनवीएस और केवीएस दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक ही बार की फ़ीस में एक ही फॉर्म से काम चल जाएगा। जैसे सपोज़ करो आप पीजीटी केवीएस और पीजीटी एनवीएस दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो एक ही बार आपको एक ही फॉर्म से काम चलेगा। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको मल्टीपल फॉर्म्स फिल करने होंगे। राइट, तो यहाँ गिवन है पीजीटी के लिए 1500 प्लस 500 प्रोसेसिंग फ़ीस। ठीक है, ऐसे ही वाइस प्रिंसिपल के लिए देख सकते हैं प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरडी। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, दीज आर द फीस। यहाँ दिया भी हुआ है, इन केस अ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर सिमिलर पोस्ट इन केवीएस एंड एनवीएस बोथ, ही शी विल हैव टू पे फी फॉर सिंगल पोस्ट। राइट, आई होप ये नोटिफिकेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम लास्ट डेट की बात कर लेते हैं कि कब तक फॉर्म फिलिंग होगी। तो 14 नवंबर से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड 4 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट। फी डिपोजिशन 14 नवंबर से स्टार्ट है एंड 4 दिसंबर 11:50 PM तक ये रहेगा। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।